Hello students, today we are going to discuss some important figures of speech. Okay, that will be helpful for your poetry section. Figure of speech, first of all the question is what are figure of speech? Figure of speech are actually figurative language. Okay, और ये figurative language, why is it used? It is used to increase the beauty of language or a particular composition. Okay, so what is figure of speech? If we जो है ना, if we define it logically or in a logical terms or in theoretical terms, so what is figure of speech? Figure of speech is the use of words, selected words, okay, to increase the beauty of language. Okay, increase the beauty of language. देखिए, there are two types of writings. One is called ordinary writing. उसमें क्या होता है कि you go on using words that वो एक सिंपल से उसमें यूज कर रहे हैं. But when you use figurative language, okay, तो that increases the beauty of that language, that composition. उसमें आपको जैसे एक पर्टिकुलर लाइन है, उसको आप एक सिंपल वे में बोलते हैं तो वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी जितना कि आप फिगर ऑफ स्पीच जब यूज कर देते हैं. ओके, जैसे अपने पास एक लाइन आती है, गार्बेज इज गोल्ड. ओके, if we use this particular word, garbage is very valuable to them. Okay, to them. So this is ordinary. It's valuable to them. आप लगेंगे yes, that kind of that may be valuable. Garbage और इस तरह के this is in. But when you are garbage is gold, means you are equalizing this garbage with gold with a figure of speech that is metaphor. Okay, so this increases the beauty of language. जब आप selected words use करते हैं, उनको एक context में रखते हैं और आपको लगेगा yes, that is a well selected expression. तो वो expression और वो figurative language क्या करती है, उस language की beauty को increase कर देती है. That is why figure of speech are used. Okay, they are popularly known as poetic devices as well. ओके, पोएटिक डिवाइसेस भी जो है टर्म इनके लिए कई बार यूज कर ली जाती है, बिकॉज जो फिगर ऑफ स्पीच है आर जनरली यूज्ड इन पोएट्री. ओके, समटाइम्स दे मे बी यूज्ड इन प्रोज लैंग्वेज, प्रोज में भी यूज हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूज्ड इन पोएट्री. ओके, सो लेट्स टेक डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच. So first of all, if we talk about the definition, I think definition is clear to you that figure of speech is the use of selected words to increase the beauty of language, and this kind of language is called figurative language. Okay, and this is different from ordinary language. Got it? Now let's talk about different kinds of figures of speech. First of all, we have alliteration. Alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of beginning sounds of the words in a line. Okay, कि भाई there are 2, 3, 4, 5 words in a particular line, and the first sound, beginning sound of those words gets repeated. तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि that is an example of alliteration. Okay, for example, she, shells,
seashells. Okay, seashells. So here because of the repetition of ash, okay, sh sound है ना, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? This is an example of alliteration. Keep in mind that the sound should be beginning sound. Okay, next, water, wonder, where, Winnie, watch. Okay, so because of this repetition, this will be called alliteration. Okay, because W sound or W sound in Hindi, because it is getting repeated, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? This is an example of alliteration. Okay. In your text, there are some examples. For example, free, far from. Far from gusty waves, the children's faces. This line occurs in an elementary school classroom in a slum. So, because of repetition of F or F sound, this is an example of alliteration. Alliteration can be divided into two parts, assonance and consonance. But for your examination, it is enough that you have the knowledge of alliteration. Assonance होता है, एक consonance होता है. Assonance is the repetition of vowel sounds. Okay, and consonance is the repetition of consonant sounds. So these all are consonants, but overall they are alliteration. Okay, so if you write alliteration only, that is sufficient. So where there is a repetition of beginning sound, it will be an example of alliteration. Okay. Now let's move to the next figure of speech, that is euphemism. Euphemism. Okay. Euphemism क्या होता है? Euphemism is the use of mild, gentle, okay, expression in place of a harsh one. हार्श एक्सप्रेशन हो सकता है, ब्लंट हो सकता है, सीरियस हो सकता है. उस एक्सपीरियंस की जगह पर अगर आप एक माइल्ड एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इनडायरेक्ट एज वेल, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. ओके भाई, आपको जैसे इफ यू आर टू टेल समथिंग बैड टू समवन, है ना, किसी को आपको बुरी बात भी बतानी है, but to choose words that should not look like that you are saying some bad thing or some कोई bad impression या bad thing जो है आप यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को आप सेलेक्ट करें, वो क्या कहलाता है? यूफेमिज्म कहलाता है. ओके, जैसे यूफेमिज्म के लिए एग्जांपल इकोनॉमिकल विद ट्रूथ. Economical with truth. Okay, and in a blunt experience or in a harsh experience, we call it lie. So instead of saying someone that you are a liar, then you may say that you are economical with truth. Means you say very little truth. Okay, so सुनने वाले को ये भी नहीं लगेगा that you are using a harsh expression for him, और उसको वो अपनी बात भी आप कन्वे कर सकते हैं that Ram is economical with truth and you are not saying that he is a liar. तो लायर यूज करने की बजाय आप अगर कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस इस तरह से एक्सप्रेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. एंड इफ यू यूज पास्ड अवे in place of died. Okay, if you say he got died, he passed away, हिंदी में भी हम यूज करते हैं, तो वह मर गया, that is very harsh experience, expression. And if you say वो गुजर गया, that is a quite satisfactory experience and repeated experience. तो इस तरह से जब आप किसी बैड एक्सप्रेशन, किसी harsh एक्सपीरियंस के लिए इस तरह के माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस यूज करते हैं कि दैट जो सुनने वाले को भी बिटर ना लगे, है ना, बैड ना लगे, तो यूज ऑफ सच काइंड ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड यूफेमिज्म. गॉट इट?
Now let's move to the next figure of speech, and that is hyperbole. Hyperbole क्या होता है? Exaggeration of things or ideas to the level of incredibility to make extra effect. ओके भाई, आप एक्सेजरेशन मीन्स कई बार क्या होता है ना, वो जैसे आप बातों को इतना इस लेवल पर एक्सेजरेट कर दे, इस लेवल पे इंक्रीज कर दे, इस लेवल पे बढ़ा चढ़ा के बोले, दैट टू द लेवल ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, कि उस पे विश्वास करना ही मुश्किल हो जाए, तो यूजिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड हाइपरबोली. ओके, कि भाई, और वो क्यों होता है? टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ दैट थिंग, ताकि उसका जो है इफेक्ट ज्यादा जो है बताया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, शी इज older than dirt. Okay, older than dirt का मतलब क्या है? Older than dirt means you are not saying that she is very old. She is older than dirt. It means she is very old. And to increase the older than dirt, इस level तो to exaggerate things to this level is called hyperbole. Okay, I called you thousands of भाई, मैंने तुम्हें हजारों बार बुलाया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. आपने उसको 1, 2, 10 बार 5 बार बुलाया होगा, बट मेक द इफेक्ट कि भाई, आई कॉल्ड यू फॉर सो मेनी टाइम्स बट यू डिडंट रिस्पॉन्ड. तो टू इंक्रीज दैट इफेक्ट वी एक्सजेट थिंग that I called you for thousands of times. So this figure of speech is called hyperbole. Okay, when exaggeration of things takes place. Okay, now let's take the next figure of speech, that is metaphor, and we will be taking metaphor and simile together. Metaphor and simile. Okay, what are these figure of speech? metaphor में क्या होता है? In this figure of speech, a comparison is made between two dissimilar things or ideas because of one or two similarities in them. देखिए, दो अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन उनमें एक या दो जो है सिमिलरिटीज की वजह से क्या होगा कि हम उनको क्या कर देते हैं, एक बताने की कोशिश करते हैं. ओके, तो उस स्टेज में क्या होता है, उस जगह पर क्या होता है, मेटाफर. Okay, for example, the world is a stage. Okay, means we are equalizing the stage with world. Okay, world हमने क्या बताया, world is a stage. जो ये world है is equal to a stage. Okay, why? Because stage पे क्या होता है, every performer comes, okay, plays his role and he goes from the stage. And same thing happens in the world. An individual come into the world, he plays his role, है ना, जो भी काम करना होता है वो करता है. He has to go through different kind of experiences. जैसे स्टेज पे एक एक्टर को जाना होता है, एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, फेवरेबल इफेक्ट्स, फेवरेबल उसके लिए एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. एंड सेम इज द केस विद एन इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड, कि वही होता है कि भाई हमें ऑल वी हैव टू गो थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो दोनों में जो है ना सिमिलरिटी है. जो परफॉर्मर यहाँ पे भी परफॉर्म करना होता है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या मिलता है, स्टेज पे जो ऑडियंस होती है आपको अपलोड करती है, आपके लिए जो है ना स्टैंडिंग ओवेशन देती है. तो और वही जो है काम किस में होता है, वर्ल्ड में होता है. इफ यू हैव प्लेड योर रोल एज एन इंडिविजुअल वेरी वेल, देन यू विल बी एप्रिशिएटेड.
Okay, and if you have some loopholes in your role, then everybody will criticize you. And same thing happens here. That is why, because these are similarity between two different things, that is why we have said that the world is a stage. Okay, so वर्ल्ड को हमने स्टेज के साथ क्यों कंपेयर किया? बिकॉज उसमें एक दो सिमिलरिटी है, लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट है. ओके, नेक्स्ट, जैसे टाइम इज मनी. देयर आर पीपल हु कंसीडर टाइम मोर वैल्यूएबल देन मनी. मीन्स उनके लिए, फॉर सम पीपल मनी इज वेरी वैल्यूएबल, बट फॉर सम पीपल टाइम इज वेरी वैल्यूएबल. ओके, सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दैट. नाउ वी कम टू सिमिली. Okay, simile is also the same thing. Okay, simile is, in this figure of speech, a comparison is made between two dissimilar things or ideas because of one or two similarities in them, with words like, as, and as. तो इसमें क्या होता है, इन वर्ड्स के साथ जो है उसमें कंपैरिजन किया जाता है. ओके, सो लेट्स सी कैसे. इफ यू सी दिस एग्जांपल, अगर हम इनका एग्जांपल देखें कि भाई सिमिली के किस तरह के एग्जांपल हो सकते हैं. सिमिली में जो है, मान लीजिए अगर हम इसी को देखें, इफ ये सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज रिटन लाइक दिस, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, तो ये क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा? सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि हम वर्ड को सीधे अगर कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो ये हो गया मेटाफर. बट इफ यू आर यूजिंग वर्ड लाइक और टाइम इज लाइक मनी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो जाएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन तो फिर भी कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग सर्टेन वर्ड्स. ओके, इफ यू टॉक अबाउट योर पोएट्री लाइन्स, जैसे एज कॉप्स, ओके, एज विंटर्स मून. ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एज विंटर्स मून. एज winter's moon. Okay, so this is example of simile, because word of use like rootless weeds, elementary school classroom, like rootless weeds. So this is an example of simile. तो इस तरह से होता है कि मेटाफर में सीधा कंपैरिजन होता है, we don't use any kind of words for that comparison, but in simile comparison do take place. बट उसमें क्या होता है, डज टेक प्लेस, बट उसमें क्या होता है कि वर्ड्स हमें यूज करने होते हैं, लाइक, एज एंड एज, दैट, एज. ओके, जैसे ही इज, शी इज एज ब्यूटीफुल एज ए फ्लावर. ओके, तो इस तरह से एज और बीच में कोई आपका एडजेक्टिव, तो इसमें भी हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमिली. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. नाउ नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया. ओके, इसमें क्या होता है, ओनोमेटोपोइया, इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ड्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो बिल्कुल साउंड को डिस्क्राइब करते हैं. मींस वो वर्ड्स जो उसी साउंड के लिए बने हुए होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या यूज करते हैं, उसमें यूज किया जाता है. ओके, जैसे वर्ड्स मींस सेम होते हैं, जैसे वर्ड बज, तो यूजिंग ऑफ वर्ड बज, ओके, बिकॉज इसकी जो साउंड होती है वो भी वही होती है और जो वर्ड है वही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोइया बोलते हैं. ओके, इज ए टर्म, देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन, इज ए टर्म यूज्ड फॉर द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग इट्स साउंड. ओके, जहां पर साउंड जो है वो डिस्क्राइब हो रही है, जैसे पुश, सच काइंड ऑफ साउंड. ओके, और अगर एग्जांपल हम ले क्लिक,
सो ये जो वर्ड्स हैं इनमें जो साउंड बनती है वो वही बनती है जो इन साउंड से आती है। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, ओनोमटोपोइया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन द यूज ऑफ टू contradictory terms or expressions. Okay, terms, expressions और words। जब आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को, एक्सप्रेशंस को एक साथ यूज करते हैं तो हम उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है? ऑक्सीमोरन। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज एन open secret. Okay, so open and secret. Okay, the news came to him as sweet sour. Okay, so sweet and sour, open and secret. ओपन और सीक्रेट क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, मींस ईदर ए थिंग इज ईदर ओपन और सीक्रेट। इसी तरह से ए थिंग इज ईदर स्वीट और सॉर। ओके, तो ये जो है एक्सप्रेशंस होते हैं, इन क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। अगर हम ऑक्सीमोरन की आपके टेक्स्ट में बात करें, एग्जांपल्स कहाँ पर आते हैं? पोयम है आपकी अ रोड साइड स्टैंड, उसमें आते हैं इसके एग्जांपल्स, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, greedy good doers. So this is an example of greedy, means either a person is greedy or good doer. So this is an example of oxymoron. Okay, now let's move to the next figure which ये आपको समझ में आ गया। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होंगे जैसे ओपन एंड सीक्रेट। ओपन मीन्स क्या तो कोई चीज ओपन होगी या सीक्रेट होगी, या तो कोई चीज स्वीट होगी या सॉर होगी। ओके, एक या तो कोई पर्सन ग्रीडी होगा या वो गुड डूअर होगा। नेक्स्ट इज पन। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पन। और पन क्या होता है? पन होता है आपका यूज ऑफ सच अ वर्ड दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन सेंस। ओके, एक ऐसा वर्ड यूज करना जिसकी आप एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं एक लाइन में, एंड बोथ द मीनिंग्स आर करेक्ट। ओके, उस पर्टिकुलर लाइन में क्या होता है? दोनों मीनिंग आपके सही भी लगे। ओके, दोनों इंटरप्रिटेशंस आपकी सही भी लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पन। इफ यू टॉक अबाउट जनरल एग्जांपल, इज लाइफ वर्थ लिविंग? ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। सो हियर द वर्ड लिवर, देखिए सेंटेंस इज दैट क्या लाइफ जीने लायक है? ये इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, किस पर डिपेंड करती है ये चीज? लिवर। अब लिवर के यहां पर दो मीनिंग है, क्या? एक तो वन हु लिव्स इट, एक तो वो जो उसको जीता है, एंड दूसरा जो आपका लिवर ऑर्गन है उसके लिए, कि भाई अगर जीने वाला लाइफ को अच्छा नहीं है तो लाइफ अच्छी नहीं होगी, और अगर आपका लिवर अच्छा नहीं है तो वो भी क्या होगा? तो क्या होगा? लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो एक आदमी जिसको पता ही नहीं है, इफ ही स्टार्ट्स रीडिंग दिस लाइन, ही कैन टेक द इंटरप्रिटेशन, ही कैन टेक द ईदर इंटरप्रिटेशन, दोनों में से कौन सी भी ले सकता है, क्योंकि उसको बताया नहीं है कि ये किस सेंस में यूज हुआ है, और दोनों ही इस सेंस में सही भी है। ओके,
If you talk about the example from our textbook, so there is an example from poem Keeping Quiet. And not move our arms so much. Okay, so arms here has been used for two activities, two meanings. Okay, one is for hands for our activities and second is weapons. और दोनों ही मीनिंग इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सही है. तो so such kind of examples are considered to be in pun. Okay. Next. Next is personification. What is personification? Personification is giving human qualities to non-living things, non-living or inanimate things, okay, or ideas. मीन्स अदर देन ह्यूमन बींग्स. जब किसी चीज को आप ह्यूमन बींग्स के जैसे बिहेव करता हुआ दिखाई देते हैं ना, उनको पर्सोनिफाई करते हैं, मीन्स पर्सन वाली क्वालिटी उनको देते हैं, ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटी जब आप उनको देते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, द फ्लावर्स आर डांसिंग. द फ्लावर्स आर dancing. So the work of dancing is attributed or associated with human beings only. Okay, so flowers are shown as dancing. It means flowers have been personified. Okay, उनका क्या किया गया है, personification किया गया है. Okay, the plants nodded. Okay, so nodding, shaking of the neck is work of human beings. तो इसमें भी हम क्या figure of speech बोलेंगे, personification. Okay, so both these are the examples of personification. Got it? Now let's take another example, another figure of speech, and that is transferred epithet. Okay, transferred epithet is the use of a modifier in place to define a noun. Okay, जब हम एक मॉडिफायर का किसी नाउन के जगह पर यूज करते हैं, किसी और चीज का हम यूज करते हैं किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं. ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे. ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल कैसे, देखिए जैसे हमारे पास पोएम है रोड साइड से, उसमें द सेल्फिश कार्स that passed away. Okay, so we are all very well know that selfish cars is related to the rich people. Okay, rich people or city people, उनकी जगह पर यूज हुआ है. तो इस तरह से किसी नाउन की जगह पर जब हम किसी मॉडिफायर को या डिफाइन करने के लिए किसी वर्ड को यूज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट. और भी एग्जांपल इसमें है, सेल्फिश कार्स हो गया. ओके, पोलिश ट्रैफिक, इसी पोएम में एक एग्जांपल हो रहा था, पोलिश ट्रैफिक. ओके, और ये पोलिश ट्रैफिक भी किससे रिलेटेड है, इन रिच पीपल. ओके, टू द रिच पीपल. ओके, अब एक चीज आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करता हूं कि देयर आर थ्री थिंग्स. वन इज मेटाफर. ओके, one is personification and one is transferred epithet. Okay, इन तीनों में क्या होता है कि या तो कोई कंपैरिजन होता है या एक चीज की जगह पर दूसरी चीज को यूज किया जाता है.
तो इन तीनों में थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए मेटाफर में जैसे द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है। तो इसमें क्या है, इसमें जिसका कंपैरिजन हो रहा है और जिससे कंपैरिजन हो रहा है, दोनों चीजें समझ में आ गई बात। जिसका कंपैरिजन और जिससे कंपैरिजन, बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर लाइन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेटाफर बोलेंगे। ट्रांसफर एपिथेट में क्या है, द सेल्फिश कार्स। ओके, सो सेल्फिश कार्स किसके लिए यूज हुआ है, रिच पीपल। तो जिससे जो है, जिसका जो चीज यूज हुई है या जिससे कंपैरिजन हुआ है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन जिसका कंपैरिजन हो रहा है रिच पीपल का, दे आर मिसिंग। तो जब दोनों में से कंपैरिजन टू विद और कंपैरिजन ऑफ, जब दोनों चीजें प्रेजेंट हो तो मेटाफर, और जब दोनों में से एक चीज प्रेजेंट है, हमें ये नहीं पता कि ये किसके लिए, या दूसरी चीज जो है हम उसको इंटरप्रिटेशन उसमें कर सकते हैं पोएम में, बट वन थिंग कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है वही जो है वहां पर प्रेजेंट है, तो दैट विल बी ट्रांसफर एपिथेट। और पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, वर्ब इज द मेन थिंग, मींस एक्शन इज द मेन थिंग। ओके, यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं होता है, यहां पर क्या होता है कि जो एक्शन होता है इन एनिमेट या नॉन लिविंग थिंग्स का, वो ह्यूमन बीइंग जैसा होना चाहिए। जैसे द विंड इज क्राइंग, तो यहां पर क्या है, वर्ब क्या है, क्राइंग, और क्राइंग जो वर्ब है वो किसका होता है, वो होता है भाई साहब ह्यूमन बीइंग्स का। ओके, सो तो ह्यूमन बीइंग्स का जब होता है तो ये जो एक्शन हो रहा है वो ह्यूमन बीइंग जैसा है, तो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गए। इसमें दोनों एलिमेंट, जिससे कंपैरिजन और जिसका कंपैरिजन, यहाँ पर एक ही एलिमेंट, और यहाँ पर जो होता है पर्सोनिफिकेशन में, एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट मींस एक्शन शुड बी दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Okay, so this is the difference between these three figure of speech. I hope you have understood all the figure of speech discussed over here. Thank you for your listening. Thank you very much.